So from rule number 11, we are going to start, and today we will finish it off, right? Yes, sir. So what was the rule number 10? Please remind me. Rule number 10 क्या था? And वाला word था क्या? Similar, sir. Everybody, nobody. अच्छा, ठीक है, चलो let's start. Okay. Yes, sir. Everybody or nobody. Sometimes with some words, with some subjects, noun is plural. Noun is plural, but its verb is singular. Its verb is singular. Its verb is singular. How? See, either of the boys. Either of the Boys. boys. Here boys is plural, but our subject is either, singular. So either is the subject here, right? Yes, sir. Either of the boys is Hari or are Hari? Is. Is, because our subject is singular. Similar. Our subject is singular. Okay? Write fast. Next rule is rule number 12. Acha, one more example. Write down in that. Firstly, one of my friends in Delhi. तो उसमें मोहन क्या कर रहे हैं? Live or lives. Suppose there are two options from live or lives and from is or are. Is. Live or lives and is and are. We have to opt one. So, which one will be the answer here? Here will be is and here will be lives. Lives. Right now. अभी थोड़ी देर कंप्लीट है वो कैसा नहीं दो तीन चैप्टर हाँ Written, everyone? Sir, second example से बता दीजिए. Second वाला example.
one of my friends is, because our subject is one. So according to the subject, the verb will be is, and here verb will be lives, singular. पूरे वर्ग में सर यही पढ़ना है, पूरे वर्ग में यही है, Sorry, पूरे वर्ग में सर यही पढ़ना है। subject verb agreement में यही होता है. रूल अलग अलग है। Is I am giving the example with the easy words, right? Mostly three verbs are, three verbs are there to fill. Simple present, is am are. Simple past, was were, right? Where नहीं बोलते बेटा, verb. Has have, and simple present, and simple past. इतने वर्ब होते हैं, ठीक है, जो भरने के लिए आते हैं. फ्यूचर नहीं बनना है, हाँ, फ्यूचर फ्यूचर का ज्यादा नहीं आता, ठीक है. फ्यूचर में तो सबके साथ फिल लगेगा, so there is no need to fill that particular verb, right? So the verbs which I have written there, the tenses which I have written there, mostly they come in the subject verb, right? क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे, Sorry? क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है. Shall I erase this one? Yes sir. Okay, I will change the tense. Don't worry. If you are getting bored with is an R, is an R, is an R, Yes. so I change the tense. सर सिंपल प्रेजेंट से समझाइए। सिंपल प्रेजेंट। Simple present ही तो था. सिंपल पार्ट। That was simple present live or lives. And I have taught in a video. You can go through the video. You will understand what is simple present. Rule number 12. Most of the rules being done. टोटल कितने रोल है सर? बेटा रूल्स की गिनती नहीं होती है. किसी बुक में 20 दिए हैं, किसी में 25 दिए हैं, किसी में 50 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं, किसी में 5 दिए हैं. So there is no criterion of the rules. How many rules are there? There are many rules in. But I am giving you the most important which can come, right? So you don't need to study more. Only 15 rules are enough. I have taught till 11. Okay. Now we are talking about the 12th. With get and be word. With get and be word. If main verb comes, it is always in third form. It is always in sometimes it is in ing. That's why अगर इनके आगे आता है तो फिर वो थर्ड फॉर्म ही होगा. हाँ, जैसे बी के साथ कभी कभी क्या तुम्हें दिखेगा, आईएनजी फॉर्म दिखेगा. जैसे शी विल बी सिंगिंग, वो गा रही होगी. शी विल बी सिंगिंग, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया यहाँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. इस सिचुएशन में ऐसा होगा, देयर कैन बी आईएनजी फॉर्म विद बी. Otherwise, most of the time you will get verb third form, main verb third form. How? The door. पहले तो ये बताओ get होगा कि gets होगा. The door get और gets. और फिर यहाँ पे बताओ open होगा कि open होगा. Gets open. The door. Gets open. The door gets. तो get और get के बाद, get और be के बाद verb कौन से फॉर्म में रहेगा? थर्ड फॉर्म. Third form. Exception is there. Except
मैंने अभी क्या बोला? Get, after get and be word, main verb will always be in the third form, except in this tense. Be और get के बाद main verb हमेशा third form में होता है, but exception is there. That is, she will be singing. That is future continuous tense. Okay? So in future continuous tense, be, after be we use verb ing form. That is future continuous. लिख लेना. इसके लिए आपके टेंसेस अच्छे होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि सभी के नहीं होते हैं, क्योंकि nobody bothers to learn tenses. कोई भी परेशान नहीं होता टेंस पढ़ने के लिए ना, इसीलिए इंग्लिश वीक होती है. पढ़ा है तो सर लेकिन भूल गए। दैट इज अ प्रॉब्लम. भूलना तो इंसान की वैसी बीमारी है, हर चीज है ना. सो इफ यू कीप फॉरगेटिंग योर टेंसेस, यू कांट लर्न इंग्लिश and you won't be able to speak even single line. After single line you will be hesitant, you will break down. If I say to you, come here and speak on science for few lines, you will not be able to speak. Why? Because you don't know tenses. If you want to continue in English, firstly go through all the tenses. If you mark the tenses, you will be able to speak. There's nothing in English. It is a kind of language. Only you are required active and passive voice. That is the voice. You are required voice. If you study voice properly, you will be able to speak. Right? Right now? So after get or be word, verb will always be in third form. Like one more sentence is, she can be. अब यहां पे बताओ क्या होगा? चीटिंग, चीटेड और चीट्स. What will be the option? She can be cheated, she can be cheating, she can be cheats. Cheated. Because I told, अगर नहीं बताया होता तो you would have got confused. Confused हो जाते ना? Right now. Rule number 13. With, as if, as though, if, word.
the verb will be in plural form. Verb will be in plural form. अगर ये वर्ड होंगे तो हमारा वर्ब किस में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे he behaves, एग्जाम्पल, he behaves as if, he behaves as if he a king. So the word as if is given here. This phrase is given here. So the verb will be, suppose I ask you, was a verb. Then the verb will be he behaves as if he was a king होना चाहिए according to the sentence and sense. But the rule says the verb will be the verb will be verb. ठीक है? तो verb क्या होगा? verb. Okay, for making the condition, we have to use this verb. So if I were you, I would slap him. Okay? So if, as though, and as if. One more sentence. He behaves as if. Achha, the same sentence. He behaves as if he my father, and always it will be in the past tense, okay, not in the present. Although the first sentence can be in the present, but the condition would be in the past. That is imagination. That is unfulfilled condition and imagination. Hypothetical, that is called. In the conditional sentence there are three parts: hypothetical, unfulfilled, and open condition. I will teach you, but right now it is not in your course, right? That's why I am not taking it. So he behaves as if he were my father and if I were you. Okay? In both the sentences we will use verb. Got it? तो ये चीज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आ जाती है कभी, ठीक है? That was rule number 13. Now we will talk about rule number 14. Shall I raise? Yes, sir. ये सब रूल तो कुछ नाम है। बेटा रूल के तो बहुत सारे नाम हैं, सब अलग अलग रूल्स हैं. अब सबके नाम लिखने बैठोगे then you can't learn. So better you learn with rule numbers, right? सर आप कह रहे हैं सर अलग अलग में अलग अलग होते हैं, अलग किसी में 25 किसी में 50. बिल्कुल होते हैं. क्यों? क्योंकि सर 14 अगर मैं किसी को अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 14 अगर ऐसे नहीं बोलना है ना. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 14 की कोई लॉ थोड़ी ना है. दैट इज नॉट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. यू आर लर्निंग. आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट रूल्स, राइट? मतलब आपको केवल रूल पता है, नंबर नहीं पता. आप मतलब जो रूल आपके दिमाग में आया Yes, yes. Right? Because I am teaching you without book, right? सर फिर अगर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन जो आप बताएं उसमें सुना है So board में बेटा I haven't made the paper, but what I taught you, it will, if it wants, I mean if it has to come, it will come from these rules. Okay? All the rules I have concluded for you. Okay, rule number 14 is that if since or for word is given, that is preposition.
Okay. The verb will be in perfect continuous tense. So perfect continuous tense we have to use either present perfect, past perfect continuous or future perfect continuous. It depends on the situation. सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. अगर सिंस और फॉर वर्ड दिया रहेगा वी हैव टू यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लाइक दिस. ही since morning. Now suppose we have to fill here play. So what would be the sentence? जरा बनाओ देखें क्या बनाते हैं आप. एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ आपने जरा बना लिया. बताओ मत खुद. या बी प्लेइंग प्लेइंग क्या करवाओ. सबको खिलाएंगे. चीटिंग क्या करवाओ. चलो जरा देखो कितना आता है आप लोगों को. सर पहले लिख लो बेटा फर्स्ट राइट. लिखने तो वही कि सर मतलब जो है फॉर्म अलग अलग यूज करके लिखना है. कोई वर्ड भी अटैच करके लिख सकते हैं. प्ले के आगे कुछ यूज करना है. जब वर्ब का फॉर्म चेंज करना है. I have written here you have to use this verb. So in this verb there are some other things also. You must be knowing this. अगर नहीं पता है तो फिर गलती हो जाएगी. अगर पता है तो you will be able to write. Right? Please write down and try. Just try. Let me know. सर पहला आपको पता है. Sorry. Yeah. He has been playing since morning. Is he right? Yes. ठीक है. दूसरा होगा he had been playing होगा सर. playing होगा. He was playing since कंटिन्यूअस है ना तो आईडी फॉर्म करना. since morning. He had been playing since last कुछ evening. ही बोल रहे हैं सर. He was playing since morning. Had लगेगा सर. He is correct. And the third one is. इसको कर रहा है. थर्ड वन इज देखो ये लास्ट वर्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बता रहा है. इट टेल्स अस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके. नाउ बी वर्ड को कैसे लिखें. बी का सर वो क्या होगा. ये बी वर्ड जरूर भरने को आता है याद रखना. अब यहाँ पे हो जाएगा he has been. देखो बी के कई फॉर्म होते हैं. आई एम टेलिंग यू. प्लीज राइट डाउन देन आई विल टेल यू हाउ मेनी फॉर्म्स दिस बी वर्ड हैज. Yes sir. Written? देखो बी वर्ड जो होता है इसके कितने फॉर्म होते हैं.
B means in present is MR. Okay, you will be given the B word. अगर is MR भरवाना होगा उसमें तो आपको B दिया जाएगा, ठीक है। और was verb, तो जैसा भी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में was verb दिया था वहां सिर्फ B दिया रहेगा, like this, if I dash here, अब यहाँ दिया रहेगा B, so you have to fill it. तब और ज्यादा टफ हो जाता ना अगर मैं नहीं बताता अभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको was verb नहीं दिया जाएगा, you will be given this B word in exam. Okay? वर बी, हाँ? वर बी, Were being नहीं बेटा, if I were here, ठीक है, ओके। सो is MR, was were, प्रेजेंट में हो जाता है has been, पास्ट में हो जाता है had been, और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाता है will, shall, have been। अब चूंकि आपके यहाँ will का यूज नहीं करते हैं CBSE, we don't use shall, right? The use of shall has been obsolete, पुराना हो गया। With every word I, we, you, they, he, she, it, we use will in future. So that is perfect tense, that is simple tense, and future, sorry, will be. Is MR, was were और will, तो ये मतलब होते हैं बी के, ठीक है। बी को हम इतनी जगह यूज कर सकते हैं। ये कब लगाओगे जब सिंस और फॉर दिया होगा। जैसे बी वर्ड दिया है तो वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस विदाउट आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस विदाउट आईएनजी, जैसे वहां पे लिखा था ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो वहां पे हम बी का बीन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़े। दैट इज द रूल नंबर लास्ट नाउ, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15। If two verbs, two main verbs, that is main verbs, join with, अभी हमने दो सब्जेक्ट्स की बात की थी एंड से जुड़ने वाले, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? verbs की। If two main verbs join with and, the verbs will be in same form. The verbs will be in the same form. दोनों किस में होंगे? सेम फॉर्म में। जैसे he came and sit by me. She was cooking and the utensils. सर पहले का सिट बाई नहीं होगा और दूसरे का वॉशिंग नहीं है इस तरह से। ये केम है तो यहाँ हो जाएगा सैट। सिट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैट। और थर्ड फॉर्म भी सैट होता है। और कुकिंग यहाँ इनकी फॉर्म है, इट विल बी वॉशिंग। तो एंड से जुड़ने वाले दोनों वर्ब किस फॉर्म में रहेंगे? सेम फॉर्म में। आपस में सेम मिलाएंगे।
ठीक है। ऐसा तो नहीं सर फिर से आप कह रहे हैं कंडीशन बना रहे हैं रियलिटी में कुछ और, सॉरी, मतलब आपने अभी कहा था ना जैसे वॉज वर्क के सामने वो कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, उसमें 3 वर्ड है, एज इफ एंड एज दो, उसके अलावा तो कंडीशन मतलब नहीं। सैट भी थोड़ा मतलब वैसे ही लगता है। सैट that is a different sentence, that was condition, that is very different। इसमें कोई कंडीशन थोड़ी ना है। कंडीशन का मतलब होता है which is not real, कंडीशन है ये शर्त थी, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, like this, तो उन सेंटेंसेस में ऐसा होगा, अदरवाइज देयर हाँ ऐसा होता नहीं है। क्या जैसे कंडीशन बताया क्यों नहीं आते कंडीशन सेंटेंस भी आ सकते मतलब हैं। ऐसे ही आने को मैंने कहा ना, द रूल कैन कम फ्रॉम एनी प्लेस, देयर आर मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। जितने भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़ते हैं वो सारे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो है। जितना भी टेंस है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो है। वो परफेक्ट टेंस दे दे, कंटिन्यूअस दे दे, इंडेफिनिट दे दे, सिंपल दे दे, एक्टिव दे दे, पैसिव दे दे, डायरेक्ट का कोई सेंटेंस दे दे उठा के, तो दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, आप कहाँ तक याद कर लोगे, नहीं कर सकते ना। तो हम सम अप कर देते हैं इन 15 to 20 रूल्स, वी सम अप ऑल द रूल्स। तो आपने जो पढ़े हैं 15 रूल, दे आर सम अप। आप शुरुआत से पढ़ लीजिए, सारे रूल्स उसमें आ गए, राइट। एंड से जुड़ने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे भी नाउन के रूल मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने लगूंगा तो 4 महीना तो इसी में चला जाएगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो जाएंगे ना। तो उसको एक सम अप कर दिया जाता है 15 to 20 रूल्स। अब किसी बुक में 25 होते हैं, किसी बुक में 30 रूल्स दिए रहते हैं, एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, किसी बुक में और कम दिए रहते हैं, ठीक है। आप इफ यू टेक रेन एंड मार्टिन, द बेस्ट बुक, यू नो देयर आर नॉट मैनी रूल्स, बहुत ज़्यादा रूल्स उसमें भी नहीं है। सर आप कौन सी बुक रिफर करेंगे? रेन मार्टिन इज द बेस्ट बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश। Wren and Martin, the name of the book is Wren Martin, W-R-E-N, Wren and Martin, Thomson Martin and W.C. Wren, there are 2 writers, उनके नाम से बुक चलती है Wren Martin, right? That is the standard book in the whole world, that book is used, पूरी दुनिया में ये बुक यूज होती है, not only in Sir, can you please add the name? sorry, Can you please add the name of the book? Wren Martin, सर ये रेड कलर का इसका कवर पेज है, Yes, sir. हाँ ये तो कवर से नहीं वैसे भी रेड कवर हाँ, yes, sir. देखो। अब ये देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, इससे भी हार्ड फॉर्म है इसका, अगर आप पुराना आपको कहीं से एडिशन मिल जाए, बेटर गो फॉर द सेकंड हैंड बुक एंड गेट द ओल्ड एडिशन ऑफ द राइट। इन द ओल्ड एडिशन यू विल फाइंड मैनी बेटर थिंग्स, क्योंकि उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया, एडिट कर दिया गया। तो अब क्या बहुत सिंपल फॉर्म में हो गई है, अब ये उतनी मज़ेदार नहीं है, 2020 में बेस्ड होगी ना। अब ये उतनी मज़ेदार नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी नाइस, आपके स्टैंडर्ड तक के लिए बहुत अच्छी बुक, यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक, इसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक। अब देखो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इसमें जो दिया है, इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा दी होगी। अब मैं एक्सरसाइज आपसे पूछता हूँ, देखो, यू विल बी एबल टू डू। बुक में जरूर नहीं है 222 अरे 222 नहीं, पेज नंबर होते देखो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है सारे रूल्स इसमें हैं, आप देख सकते हैं। आप पहले मेरा वीडियो देखिएगा, फिर ये सारे रूल्स मिलाइएगा बुक में, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग देयर। अब देखो यहाँ जो एक्सरसाइज 1-1-10 दी हुई है, देखो, टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क, नॉट टू डू वर्क इज डिसऑनेस्ट और आर डिसऑनेस्ट।
पैसा ले लेना और काम ना करना डिसऑनेस्टी है? इज की आर? सिंपल. टू टेक पे एंड नॉट टू वर्क इज डिसऑनेस्ट. द कॉस्ट, कॉस्ट इज, मैंने बताया था कि किसी भी चीज का कॉस्ट अगर लेते हैं तो वो सिंगुलर होता है. द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 3 आर्टिकल्स इज राइजन और हैज राइजन और हैव राइजन. मतलब जो भी अगर लगाओगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में लगाओगे, राइट? देखो वर्ब का फॉर्म नहीं दिया है, यू हैव टू राइट फ्रॉम योर ओन साइड. द ज्यूरी, हाँ, वन मोर वर्ड इज omitted. The jury. Now the jury and the collective noun. This rule I will tell you. Keep the book here. Rule number 16 एक बना लो. That is also very important. The jury. Jury is collective noun. Jury is a word which means the bench of judges. Bench of judges means there are many judges when a verdict is given. Please keep quiet. When any verdict is given, there are many judges. Not one, but many. At least 7 to 9 judges are there. 5, 7, 9 ऐसा group होता है judges का. तो jury means the bench of judges. When it is collective noun. In the same way, the team is collective noun. In the same way, class is a collective noun. When the collective noun work unanimously as a collection as a whole, it is singular. Collective noun is always regarded as singular. But when it is dispersed, जब ये dispersed हो जाता है तो ये plural बन जाता है. तो jury has or have given its decision. क्या लिखेंगे? Given its decision. Given its decision. अब तो इट्स बता रहा है कि ये इट है, इतनी बड़ी पहचान है वहां पे. इट्स बता रहा है दैट इज इट. इट का इट्स होता है ना पोजेसिव. तो जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन. और अगर जूरी आपस में उनका डिसीजन सेम नहीं है तो हो जाएगा द जूरी hasn't. डिवाइडेड इन देयर डिसीजन. अब यहाँ पे इतनी बड़ी तुम्हारे पास ये देखो क्लू आ गया, देयर हो गया, दे का पोजेसिव देयर हो गया, देयर डिसीजन. यानी कि इनके डिसीजन अलग अलग हो गए तो दे बिकम प्लूरल. तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा. तो अगर ज्यूरी डिस्पर्स हो जाएगी तो it will be plural like this. The jury divided in their decision. तो देयर बता रहा है कि ये दे हो गए. अब तो जब ये दे हो गए the verb will be plural. verb क्या हो जाएगा? plural. ठीक है, verb will be jury are. इसी तरह टीम अगर एक रहती है, यूनिटी में रहती है, then it is singular, otherwise it is plural. The team are fighting. Team is fighting with the other team. That is different thing. They are united. But अगर आपस में लड़ जाएंगे तो team are fighting. तो teams नहीं लिखेंगे, team are fighting. Team singular, but verb will be plural. Why? Because the team is not singular now. Team is not collective now. When the collective noun is dispersed, it is plural. When it is unanimous, when it is in unity, when it is united, it is singular. जब collective noun सिंगुलर रहता है तो वो कलेक्टिव रहता है, जब वो डिस्पर्स हो जाता है तो वो प्लूरल. क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा. आप ये बुक से लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क. ठीक है. हाँ, कुछ बुक्स के नाम होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अरेबियन नाइट्स, एस लगा हुआ है लास्ट में. There are some nouns which are having s in the last. तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्लूरल हो गए. अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक. ठीक है, क्योंकि भाई वो बुक का नाम है ना ये. There are many nouns having s in the last, but they are always singular. किसी का नाम है जॉन कीट्स तो वो प्लूरल नहीं होगा, तो नाम है. इसी तरह बुक का नाम क्या है? अरेबियन नाइट्स. दैट इज सिंगुलर, वो सिंगुलर. ठीक है, तो वी स्टॉप हियर.